Hello students, welcome you all in my English tutorial classes. I hope you must be safe and sound along with your family. And I always pray to Almighty to bless you and your family during this pandemic. Today I am here with the beautiful poem from class 11th, The Laburnum Top by Ted Hughes. In this poem, actually, poet has tried to explain the value, importance of female species in our life. Let me tell you first the scenario of this poem. It's something like a poet is sitting in his balcony, and from his balcony he could see a laburnum tree out of his house, which is totally silent, inactive. And all of a sudden a female bird, goldfinch bird, comes from nowhere, and then with her presence the tree gets active. Some kind of sound, some kind of motion, some kind of feelings of happiness was visible to poet. And that female bird stays there for a very short time, and then she moves back. For this short duration, the tree was totally alive. That's what the poet has mentioned in this poem. And once she has gone back to the sky once again, the tree became again silent, again inactive. So before the coming of goldfinch and after the moving of goldfinch, female bird, the tree gets totally silence. So with the example of female bird, the poet has tried to explain or to make us understand the value of female species in our life. The house is not a house without a lady, without a female bird, without a female who's there to take care of the house properly. It remains only a combination of walls and ceilings, nothing else. So that's what the poet has tried to actually refer in this poem, because the tree remains absolutely dead. No silence whatsoever. No kind of motion whatsoever. But once the bird comes, it starts moving. It becomes alive. And once the bird has gone back, it is again dead. So the importance of female species in human life on this earth has been very well explained in this poem. So now I'll just read it out for you line by line and try to explain you line by line. The laburnum top is silent and quite still in the afternoon yellow. September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. What the poet could see from his balcony is that the tree in front of his balcony is totally silent. The month is of September, autumn month. The leaves of that particular trees have gone yellow, are turning to yellowish, and all seeds have fallen. The seeds of that laburnum tree they have all fallen, because in the month of autumn month they normally fall down. So everything is normal, everything is silent, everything is according to weather. Nothing important, nothing he could find to mention on that tree when he has just seen that tree first time. And then in the next stanza what he says is, till the goldfinch comes with a twitching chirrup, and all these things remain same till that female goldfinch comes with a twitching chirrup. Twitching chirrup means a kind of sound which they normally makes before landing or before taking off. A suddenness, a startlement at a branch end, and all of a sudden at a branch end, एक टहनी पर एकदम से suddenness आ जाती है, startlement हो जाता है. Startlement means something which was having no motion and all of a sudden starts moving. तो एक life का एक movement, एक तरह का वहाँ पे significance आने लगता है कि वो वहाँ पे एक मूवमेंट आ गया, एक तरह ऐसा लगता है कोई बेजान सी चीज़ एकदम से चलना शुरू कर दिया उसने, उसमें मूवमेंट आ गया.
कैसे आया? जैसे ही वो गोल्डफिंच वहाँ पर लैंड करती है, एक टहनी पर लैंड करती है। देन स्लीक एज लेजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। स्लीक एज लेजर्ड मीन्स प्रिकॉशस लाइक ए लेजर्ड। आपने लेजर्ड देखी होगी, वो बहुत प्रिकॉशस होती है, उसकी आंखें चारों तरफ देख सकती हैं, उसको नेचुरली पावर कुछ ऐसा मिला हुआ है और वो बहुत प्रिकॉशस होती है, जरा सी भी आहट होती है तो भाग जाती है। तो जब वो गोल्डफिंच वहाँ पर लैंड करती है तो बिल्कुल प्रिकॉशस होती है, वो देख रही होती है कोई और तो नहीं है जो मुझे देख रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर टहनी पर उसके बच्चे हैं और वो नहीं चाहती कि कोई और इस बात को आइडेंटिफाई कर सके कि वहाँ उसने कहीं थिकनेस में अपना घोंसला बना रखा है जहाँ उसके बच्चे हैं। तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ, और यहाँ पर स्लीक एज अ लेजर्ड सिमिली का यूज़ हुआ है, लेजर्ड से कंपेयर किया है गोल्डफिंच को। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। शी एंटर्स द थिकनेस, थिकनेस मीन्स डीप इनटू द ट्री, वो अंदर चली जाती है। नाउ राइटर कुड नॉट सी हर, राइटर अब उसको देख नहीं पा रहा, सॉरी पोएट अब उसको देख नहीं पा रहा है। वो ट्री के अंदर थिकनेस में चली जाती है जहाँ पे उसने अपना घोंसला बना रखा हुआ है, और जैसे ही वो वहाँ जाती है एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स। चिटरिंग की मशीन, चहचहाने की, जो वहाँ बच्चे डेडली साइलेंस से पड़े होते हैं क्योंकि शायद उनको ये चीज़ इंडिकेट की गई है कि जब मैं यहाँ ना रहूँ तो आप आवाज़ नहीं करेंगे, वरना कोई दूसरा पक्षी या जानवर आके आपका शिकार कर सकता है। तो जैसे ही उन्हें आहट मिलती है कि माँ आ गई है, अब वो उनकी चिटरिंग शुरू हो जाती है, चहचहाना शुरू हो जाता है, एक मशीन आ जाती है, मशीन ऑफ चिटरिंग। ये अगेन यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया है, अगेन अ फिगर ऑफ स्पीच। चिटरिंग्स को एक मशीन के तौर पर बताने की कोशिश की है। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़, उनकी चहचहाने की आवाज़, उन पंखों की आवाज़ सुनना शुरू हो जाता है, और वो पेड़ एकदम से क्या हो जाता है? सडन मोशन में आ जाता है, अलाइव हो जाता है। जहाँ पे किसी तरह का कोई मोशन नहीं था, डेड सा लग रहा था, अब वो राइटर को लग रहा है कि पेड़ जैसा जिंदा हो गया है। उसमें बच्चे भी बैठे हुए थे, किसी को पता ही नहीं था, अब वो एकदम से आवाज़ें आने लगी हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा का पूरा पेड़ ऐसा जगता है कि वो एक्साइटमेंट, थ्रिल आ गया उसमें, एक एक्साइटमेंट आ गया है, ट्रेम्बल हिलने लगता है, एक जीवन आ गया उसमें। ऐसा ही होता है जब कहीं आप बच्चे घर पर हैं और मदर कहीं घर से बाहर है, और ऐसा लगा तो अगर घर में बाहर से ताला बंद हो तो शायद आसपास के लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि घर में कोई है, पर जैसे ही माँ अंदर आती है, बच्चों का जो रिफ्लेक्शन होता है वो लगता है कि हाँ घर में कोई है। तो वो फीलिंग उन्होंने दी है, वो इस फीमेल स्पीसीज़ के इंपॉर्टेंस को बताया है कि कैसे ही उनके घर में प्रवेश करते ही घर अलाइव हो जाता है, जिंदा हो जाता है। यहाँ पर द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। ट्री को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी हैं जो नॉर्मली उनमें नहीं होती। दे डोंट फील थ्रिल और दे डोंट फील एक्साइटमेंट, दे डोंट फील ट्रेम्बलिंग, दे डोंट नॉर्मली ट्रेम्बल। एक्साइटमेंट तो फील करते हैं मगर दे डोंट नॉर्मली ट्रेम्बल, लेकिन वो ट्रेम्बलिंग जो ह्यूमन क्वालिटी है उसको इनकॉर्पोरेट किया है ट्रीज में, पर्सोनिफिकेशन। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब वहाँ महसूस हो रहा है जैसे ट्रेन का कोई डब्बा बिना इंजन के खड़ा था, अब एकदम से इंजन आके वहाँ पे लग गया है और द ट्रेन हैज़ जस्ट स्टार्टेड मूविंग। तो महसूस हो रहा है कि वो गोल्डफिंच फीमेल बर्ड इंजन है उस फैमिली का। जस्ट लाइक इन आवर फैमिली, जो फीमेल हैं, हमारी मदर्स हैं, वो इंजन है फैमिली का, उनके बगैर फैमिली नहीं हो सकती। अगेन इन दिस लाइन, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, मेटाफर का यूज़ किया है, बर्ड को इंजन बताया है फैमिली का। शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। स्टोक्स इट फुल, स्टोक मीन्स होता है टू प्रोवाइड फ्यूल। अब वो जो भी आपने कभी देखा हो अगर चिड़िया को, बच्चों को खाना खिलाते हुए, नॉर्मली बर्ड्स कैरी देयर फूड इन देयर थ्रोट एंड दे डोंट गॉबल इट, दे जस्ट होल्ड इट हियर एंड जस्ट पुट इट वन बाय वन टू देयर यंगर वंस। तो वो प्रोसेस पूरा हो गया, स्टोक्स इट फुल, पूरा सबको उसने खिला दिया है। देन फ्लोट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, फिर से उस थिकनेस से बाहर आ जाती है और एक टहनी पर एक जाके बैठ जाती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रेस्ट, जस्ट आर मदर्स टू। जैसे वो हमें खाना पीना खिला लेती हैं, सारे हमारा रूटीन पूरा हो जाता है, तो दे जस्ट टेक अ बिट ऑफ रेस्ट, फिर एक नई फ्लाइट लेने के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर एक नया काम शुरू हो जाता है, नया काम उनका वेटिंग कर रहा हो, इंतज़ार कर रहा होता है। तो उस काम को टेक ओवर करने के लिए वो फिर से थोड़ा सा रेस्ट ले रही होती हैं। बिल्कुल उसी पोजीशन में अभी गोल्डफिंच, जो मदर गोल्डफिंच बर्ड है, वो भी आकर थोड़ा सा रेस्ट ले रही, क्योंकि उसे फिर से एक फ़्लाइट लेनी है, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, उसे सनसेट से पहले डिनर भी ले करके आना है। तो वो उसके लिए वो थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, तैयारी कर रही है।
शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। यहाँ पर जो पोएट कह रहा है वो ये कह रहा है कि वो अब उसके फेस को पहली बार देख पा रहा है, क्योंकि जब वो उसने ट्री में एंटर किया तो पोएट वॉज नॉट एबल टू सी हर फेस। अब वो जो है वो इस पोजीशन में बैठी है जहाँ से कि पोएट उसके फेस को क्लियरली देख पा रहा है और वो स्ट्रिप्स देख पा रहा है। गोल्डफिंच के चेहरे पे कुछ स्ट्रिप्स होती हैं येलो कलर की, वो स्ट्रिप्स भी क्लियरली विजिबल हैं। उस चीज़ को वो कह रहा है फेस आइडेंटिटी मास्क, मतलब उस स्ट्रिप्स को देख के ही पोएट ने पहचाना कि ये गोल्डफिंच बर्ड है। देन विद इरी डेलिकेट विसल चिरअप विस्परिंग शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इन्फिनाइट। फिर से एक बहुत ही ऑकवर्ड डेलिकेटनेस के साथ फिर से अपनी आवाज़, उसी आवाज़ को जो वो लैंडिंग के वक्त और टेक ऑफ के टाइम में ख़ास किस्म की आवाज़ करती हैं गोल्डफिंच बर्ड, उसी आवाज़ को फिर से करते हुए शी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इन्फिनाइट, शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द इन्फिनाइट वंस अगेन। अब वो फिर से खाने की तलाश में निकल गई, फिर वो डिनर लेने के लिए निकल गई, क्योंकि उसे सनसेट से पहले डिनर लेके अपने बच्चों के लिए आना है। एंड द laburnum subsidized empty, and again the laburnum top is totally empty. Again the tree is in the same motion as it used to be before the goldfinch bird has arrived. फिर से वो उसी मोशन में पहुंच जाता है, डेडली फीलिंग हो जाती है, लगता है कि अब यहाँ कोई है ही नहीं, बिल्कुल सन्नाटा है। So with the example of this laburnum tree and the goldfinch bird, the poet has clearly mentioned the value of female species, especially mothers in our life, कि उनका कितना बड़ा रोल प्ले है। वो इंजन की तरह है हमारी फैमिली की, वो उसको चला रही हैं, भले ही फादर्स अर्न कर रहे हैं लेकिन चला वही रही हैं। तो इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं पोएट ने रेफ़र किया है। तो और मैं इसमें देखूं तो मैंने आपको सारे फिगर ऑफ स्पीच बता दिए हैं। मेरी समझ से कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको मुझे लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, जो था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सो यू कैन से दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। और अगेन एंड में आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, your schoolmates, your friends from different schools also, and like and subscribe my channel also. Thank you so much. Have a nice day.